Bismillah ar-Rahman Rahim. Respected parents and dear students, hope you all are fine. Today is 20th August, Wednesday. In this video, I will guide you 6th class diary. Let me start the diary. First diary is vocabulary, backbone, रीढ़ की हड्डी, and vowels, ante. These words are for learning. And the next diary is English LT. Unit number 9, question number 1, 2, 3 is for learn from grammar tree notes, page number 5. Students, let's see. The first question is, what was the Mr. Akbar profession? Mr. Akbar का profession क्या था? Mr. Akbar क्या job करते थे? Mr. Akbar was newly appointed. Mr. Akbar जो थे वो नए मुकर्रर करदा टीचर उस्ताद थे in this town, इस कस्बे के. The next question, describe the school building in your own words. स्कूल की जो बिल्डिंग थी, स्कूल की इमारत, उसके बारे में अपने अल्फाज में बताएं. Bricks, ईंटें, stone, पत्थर, rotten bits of wood, लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े, broken glass were scattered, और टूटा हुआ शीशा scattered फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, around the ground, मैदान में इधर उधर. The ground stood barren. ग्राउंड मैदान जो था वो बंजर नजर आता था. as nobody has thought to develop it, और कोई भी इसकी तरक्की के बारे में नहीं सोच रहा था. it was more like, और ये नजर आता था as a horror house, एक खौफनाक घर की तरह, than school building, स्कूल बिल्डिंग से ज्यादा, ये स्कूल बिल्डिंग से ज्यादा एक खौफनाक घर की तरह नजर आता था. Third question, what did Amina tell Mr. Akbar about herself? अमीना ने मिस्टर अकबर को अपने बारे में क्या बताया? She told him, उसने बताया, that she faced, कि उसने उसने सामना किया, many challenges, बहुत सी मुश्किलात का, to have access to education, अपनी तालीम तक रसाई के लिए. Students, these questions for learning. The next diary is English GR. Story, The Lion and the Mouse. Half learned, page number 49 from Grammar Tree Notes. The Lion and the Mouse. एक शेर और चूहे की कहानियां बेटा ये. Once there was a lion. एक दफा का जिक्र है कि एक शेर रहता था. He was sleeping. वो सो रहा था. Under a tree. एक दरख्त के नीचे. A little rat. एक छोटा चूहा came out of his hole. एक छोटा चूहा अपने सुराख से, अपने बिल से बाहर आया. होल कहते हैं बिल या सुराख जिसमें चूहे रहते हैं. and climbed, और चढ़ गया the sleeping lion, सोते हुए शेर के ऊपर. the lion woke up, शेर जाग गया. and caught the rat, और चूहे को पकड़ लिया. he wanted to kill him, वो उसे मारना चाहता था. the rat trembled, चूहा कांपने लगा. with fear, डर से. and begged, और मांगने लगा. for mercy, रहम. चूहा डर से कांपने लगा और उससे रहम की इल्तिजा करने लगा. the lion took pity on him, शेर को उस पर रहम आ गया. and let him go, और उससे जाने दिया. स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने अपनी स्टोरी जो है इसको लर्न करना है और प्रॉपर इसकी रफ प्रैक्टिस भी करनी है. and the next diary is Urdu NR, chapter number 12, question number 5, 6 plus अल्फाज जुमले learn, page number 18 from final term notes. Let's see. Question number 5, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? अफवाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर है. मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को निशान हैदर क्यों दिया गया? आपको बहादुरी और जुर्रत का आला तरीन मुजाहरा करने पर अफवाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर दिया गया. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फाज जुमले. घराना महमूद का ताल्लुक शरीफ घराने से है. इब्तदाई, अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की. आला का मुतजाद अदना है. कारकर्दगी, असगर ने मैट्रिक के इम्तहान में आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया. हल्ला बोलना, पुलिस ने डाकुओं पर हल्ला बोल दिया. पेशे नज़र, तुम्हारा मामला मेरे पेशे नज़र है. मुकाबला, 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत का डट कर मुकाबला किया. Students, this work is for learning and also for practice. Next diary is math, exercise 6.2, question number 1, 2, 3. C work plus
home practice plus table of 8. This work will be guided in another video. And the next idea is science unit number 9 short question number 2 3 learn plus homework. Students आप इन 2 questions को learn भी करेंगे and इनका homework भी करेंगे. This work is on page number 12 from final term notes. Students, page number 12 of your final term notes and question number 2. Difference between KE and PE. KE means kinetic energy and PE means potential energy. Let's see the answer. Energy in body due to its motion. वो एनर्जी जो आपकी हरकत की वजह से आपकी बॉडी में होती है इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. और जो आपकी पोजीशन की वजह से आपकी बॉडी में होती है एनर्जी वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी. एंड द क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं. मोस्ट ऑफ द एनर्जी बहुत ऐसी एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ कम्स फ्रॉम कोल कोयले से हासिल होती है, ऑयल तेल से एंड नेचुरल गैस और नेचुरल गैस से. दीज फ्यूल्स ये फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं. फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड इन रॉक्स. ये रॉक्स यानी पत्थरों की शक्ल में भी होते हैं. फ्रॉम द डेड बॉडीज मुर्दा जानदारों की एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और जो पौधे हैं उनकी बाकियात से एंड एनिमल्स और जानवरों की. दीज क्वेश्चंस फॉर लर्न एंड फॉर होमवर्क. The next diary is ISL unit number 4 chapter number 4 intro plus words meaning plus homework plus learn page number 29 from final term notes. Students look at here page number 29 Bab Chaharam सबक नंबर 4. एहसान. स्टूडेंट्स एहसान कहते हैं किसी के साथ नेकी या भलाई करने को. यानी अगर कोई इंसान मुश्किल में है तो आप उसके साथ कोई भलाई करते हैं तो वो आपका एहसान कहलाता है. इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें बहुत ज़्यादा मिसालें मिलती हैं. सहाबा किराम की ज़िंदगी से हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं. जैसे यूँ नो के हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से सहाबा किराम की ज़िंदगी की मिसालें इसमें मौजूद हैं. इन सिंपल वर्ड्स एहसान बेटा ये भी है कि आप किसी के साथ भलाई के अलावा भी आप किसी की मदद कर देते हैं मुश्किल हालात में और फिर उसको बाद में जतलाते भी नहीं हैं कि आपने उसके ऊपर एहसान किया है. यानी आप अपनी जो अपनी ज़रूरियात को पेश नज़र रखने के बावजूद आप किसी की हेल्प कर देते हैं, आप किसी के साथ भलाई कर देते हैं. यानी अगर कोई इंसान आपके साथ सफ़र पर जा रहा है तो आपके पास एक वाटर बोतल है तो आप उसमें से कुछ वाटर जो है ज़रूरत के तहत आप अपने साथी को भी पिला देते हैं और उसमें से कुछ अपने लिए बचा लेते हैं. तो ये आपका एहसान है उसके ऊपर. यानी मुश्किल हालात में आपने उसकी हेल्प कर दी तो ये आपका उसके ऊपर नेकी है यानी एहसान है. और स्टूडेंट्स इसके अल्फाज मायनी हैं. एहसान नेकी या भलाई करना, कहत खुशकसाली, सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता, मामूली बहुत कम, बद जुबानी बुरे अखलाक, गल्ला अनाज, भटक जाना रास्ता भूल जाना, खंदा पेशानी खुशी से. द नेक्स्ट डायरी इज तर्जमातुल कुरान सूरतुल कौसर अल्फाज मायनी इज फॉर लर्न पेज नंबर 36 from final term notes. Students see here page number 36 of final term notes. सूरतुल कौसर अल्फाज मायनी. आतईना का अता फरमाई फसली तो नमाज पढ़ें. ली रब्बी का अपने रब के लिए वानहर और कुर्बानी करें. शानिया का दुश्मन अल अब्तर बेनामो निशान. एंड द लास्ट डायरी इज किरात अखलाकियात नंबर 2 लर्न. स्टूडेंट्स आपके आपका पैराडाइज का सिलेबस प्लानर है उसके पेज नंबर 36 के ऊपर अखलाकियात नंबर 2 है. इसको आप प्रॉपर लर्न करेंगे. उसके ऊपर अराब लगाएंगे यानी जेर ज़बर भी लगाएंगे. थॉट ऑफ द डे स्टे क्वाइट खामोश रहें व्हेन अदर्स स्पीक जब दूसरे बोल रहे हों. स्टूडेंट्स आप लोग जब बड़े बोल रहे हों या कोई आपके फेलोज जो हैं कोई भी पर्सन बात कर रहा हो खा वो आपसे छोटा है या बड़ा है तो उस वक्त आपको खामोश रहना चाहिए ताकि उसकी बात को आप प्रॉपर सुन सके. जब आप बात करें तो फिर वो भी आपकी बात को
پراپر سنیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.